O'zing menga. Sen bu yerda nima qilyapsan? Sevara. Ha, kiring. Assalomu alaykum. Uyga kech kelyapsiz-da. Meni uyda ham ko'raverarding. O'zi, sizni ko'rgani keldim. Menga ham ish topiladimi? Ha, Dada, ofisingiz o'zgarib ketibdimi, dada? Nima, o'zingizni qizingizni ishga olishni istamaysizmi? Ataylab yo'q deyapsiz-a? yo'q. Seni sohang boshqa-ku. Bizniki biznes. Qizim, Agar bilsangiz, hamma sohani ham media boshqaradi. sen bo'lsa mediaga o'qigansan. Kompaniyani PR bilan shug'ullanardim. Biron bir media markazlariga ishga kirganing yaxshi. Yaxshi-chi, Sevara, sen Yo'q demang, dadajon. bizda o'zi shundoq ham PRchilar yetarli. Iltimos. Buving yaxshimi? O'ylab ko'raman. Xo'p. O'tiribdilar, xonalardan chiqmay. Yaxshilar, bir nava. Qani men bir xabar olaychi. Ajoyib, juda ham mazali. Oling, dadajon. Qali, yoqdimi? Dadajon, hozir kelaman, xo'p? Mayli, eshikka qara. Osh bo'lsin. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Shirin ovqatni hidi chiqyaptimi? Assalomu alaykum. Keldingizmi? Adajonim kelganlar. Ye? Kimmi, oyoq kiyimi? Bir umr qizidan xabar olmagan endi xabar olganlar kelib qoptimi? O'zi, xabar olgani kelibdilar. Tinchlikmi? Nega kelibdilar? Unisi ham, bunisi ham. Yo, pul berib qo'yganlarga kechqurunlar uyqular kelmayaptimi? Jonga tegdi. Endi pul berib qo'ydim deb. Sizni kutib o'tiribdilar. Pulni olib qo'ydingiz-da. Hey, Shunaqa. Chiddiysiz. biz bilan birga yashasalar kerak hali. Bo'pti, qochchi. Faqat ishlatib oling, keyin berasiz. Qaytarib beraman o'sha pullarini. Shundoq ham berasiz. Ye, assalomu alaykum. O'tiravering. Qorningiz ochmi? Mayli. Ha, rahmat. Rahmat. Qani, o'tir. O'tiravering. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Baquvvat. Mana shu xonadonda faqat to'ylar bo'lsin. Allohu akbar. Hozir olib kelaman. Qani ilohim, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Mana Ozgina bo'lsa, yo'q demasdim. Yaxshi keldingizmi? rahmat, Xudoga shukr. O'zi Ishlaring yaxshimisiz? bo'lyaptimi? Charchamasdan. Salomatmisan? Rahmat. Men bergan pullarni Yaxshi, bo'ladi. xo'sh-ku, ishlar qanaqa ketyapti? O'ylagan ishlarimiz amalga oshyapti. Yo'q, hozircha Ish qilib behudaga isrof qilmayapsanmi? Omadingni bersin. rahmat. Yaxshi. Namchi qolib ketding? Ha, buni topishni o'zi bo'lmadi. Yaxshimisan? Ha. Qalaysan? Olib keldim. Olib keldingmi? Ozginasini o'zi yetadi. Qara, o'ldirib qo'yma. Ta'sir qiladimi? Ta'sir qilmasa-chi? Necha soat uxlaydi? 1 sutka uxlaydi. Xavotirlanma, ta'sir qiladi. Menga ishon, sinalgan.
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल कल्चर 2 सीज़न की नई एपिसोड में आइए हम लोग देखते हैं। वो बीबी जान के बुलाने पर कई माह बाद हवेली आया था और अपने बेटे अनीक को देखकर कैसे बिखर कर रह गया था। खूबसूरत सेहतमंद अनीक बहुत कमज़ोर हो चुका था। जब वो चंद दिनों के अनीक को छोड़कर गया था तो वो बहुत सेहतमंद बच्चा था, तो वो बहुत और बस दिल खां के अंदर दुख पालने लगे। माँ तो उसकी मर गई थी, मगर जीते जी उसने अपने बेटे को खुद से महरूम कर लिया था। बात सुन पुत्र, अब तू कहीं नहीं जाएगा। तेरे बाप और तेरी लड़ाई मुझ में न मानी, और इस बच्चे का क्या कसूर है? तरस नहीं आ रहा तुझे इस पर? माँ की मोहब्बत का अगर एहसास नहीं तो इसकी खातिर ही रुक जा। बीबी जान आबूदा हो गई तो उसके अंदर मौजूद दुख लावे की तरह फटने लगा। मैंने कसम खा ली है बीबी जान, जब तक मैं हर इल्ज़ाम से बरी नहीं हो जाता मुझ पर हर तरह की नेमत हराम है। मैं यहाँ रहता हूँ तो इस हवेली की वहशत मुझे खाने को दौड़ती है। गुजरे दिनों की अजियत नागन की तरह डसती है। बीबी जान, मुझे हर तरफ सारा नज़र आती है। मैं सब बर्दाश्त कर गया था, हर इल्ज़ाम, हर अजियत, मगर सारा की वो बेएतबार निगाहें बोलती नहीं मुझे बीबी जान। वो बगैर कुछ के चली गई और मुझे जीते जी मार गई। मेरा जी चाहता है कि हर तरफ आग लगा दूं, हर चीज़ तहस नहस कर दूं। वो जो मेरी ज़िल्लत का सबब है उसे अपने हाथों से ज़िंदा दगोर कर दूं। बीबी जान के दिल पर किसी ने हाथ डाला दिया। इतने माह गुजरने के बावजूद इसकी ज़हनी हालत वही थी। ना पुत्र ना, जज्बाती नहीं होते। गुस्सा अक्ल को खा जाता है और गुस्से में इंसान गुनाह तक कर लेता है। सब्र से काम ले, सब्र से पुत्र, नहीं होता सब्र। आग लगी है मेरे अंदर, कोई सारा हाथ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता बीबी जान के क्या करूं। बीबी जान ने इसकी पेशानी चूम ली। मैं सदके, मैं कुर्बान, ऐसी बातें ना करो, माँ के दिल को तकलीफ़ होती है। मैं तो तुम्हारा एतबार करती हूँ ना, यहाँ सब तुम्हारा एतबार करते हैं। तेरे भाई भाभियाँ सब तुझे जानते हैं। बस तेरे बाबा को गुस्सा है, तू दिल पर मत ले। उन्होंने उसे ठंडा करना चाहा, वो असूल पसंद हैं। जुल्म अगर मिजारे के साथ भी हो तो बर्दाश्त करते हैं। तू फिक्र ना कर, बड़ी जल्दी उन्हें एहसास हो जाएगा कि तुम गलत नहीं हो। क्या फ़ायदा ऐसे एहसास का? उनके एहसास से मेरी सारा तो वापस नहीं आ जाएगी। इसका लहजा जहर खंद था। बीबी जान खामोश हो गई। बीबी जान, कुछ पल उसने पुकारा तो उन्होंने उसे देखा। वो खतूत और तस्वीरें किधर हैं? वो चौंकी थी। मेरे पास क्यों? खैरियत पुत्र, मुझे ज़रूरत है उनकी। मैं बतौर ख़ास इसलिए आया हूँ कि वो सबूत हासिल करूँ। सारा तो चली गई, मगर मैं एक इल्ज़ाम लेकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं पता करना चाहता हूँ कि इस लड़की ने क्यों मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला। इसकी नस नस में जहर फैला हुआ था। किस कदर वाशियाना अंदाज था। बीबी जान उठिए, मगर अब क्या फ़ायदा? तू मिट्टी डाल, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने सरसराते लहजे में कहा। तो वो पनकारा, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से बस मुझ पर झूठा जुर्म है साबित करूँगा। मैं सब हकीकत जानना चाहता हूँ। बीबी जान रबीदा लाइल्म थी कि वो इसकी लाइल्मी पर उलझ गया था। किस कदर हैरियत थी कि इसके हर अंदाज में वो लड़की इस्तेमाल की गई थी या वाकई ही बेकसूर थी। वो खुद भी उलझ गया था और अब वो यहाँ उलझन ही तो सुलझाना चाहता था। डॉक्टर बदा इसकी धमकी पर जिस तरह फ़ौरन इसका हाथ देने पर मान गई थी और रहा उनके बाद इसने इसके खौफ से जो भी बयान दिया था, इस बयान ने उसे मज़ीद उलझा दिया था। अगर वो महज इसकी धमकी के खौफ से गलत बयान देने पर मजबूर हो गई तो फिर डॉक्टर बैदा के लाइल्मी इसको उलझा गई थी, वरना वो शायद उसे कभी रहा ना करता। रफ़ीक इस पर और इसके घराने पर अभी भी निगाह रखे हुए था। इसकी गवाही की फ़ाइल बंद हो चुकी थी। अगर वो चाहती तो इसका नाम लेकर उसे कड़े में खड़ा कर सकती थी। खुसूसन बिनिश तो रब्ता करने की कोशिश करती, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। वो असल सारी सूरत हाल से उकता कर असल सबूत लेने चला गया।
अब वो कुछ और लाअमल तरबीब देने चाहता था। तुम इधर ही रहोगी ना? बीबी जान ने पूछा। तो उसने अनीक को प्यार किया? पता नहीं, अनीक को कौन सा संभालता है? शाइस्ता ही देखती है, हर वक्त उसके पास रहती है। तंग तो नहीं करता उन्हें? लो, इतना सा बच्चा भला किसी को क्या खाक तंग करेगा? बस ऊपरी दूध से बीमार हो गया था। वैसे बड़ा सब्र बच्चा है, अपनी माँ की तरह। शाइस्ता के साथ ही हल गया। अच्छा शुगुन है, कल को तुम्हारी बीवी आ जाए तो परेशान ना होगी। फजल खान ने चौंक कर बीबी जान को देखा। क्या मतलब? तेरे बाबा चाहते हैं कि अब तेरी शादी कर दे? उन्होंने निगाहें चढ़ाते इंकशाफ किया था और फजल खान हैरियत दिदा रह गया था। हरगिज़ नहीं, आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो फट पड़ा था। सारा के बाद अब तो सारी उम्र ऐसे तो नहीं गुजारा सकते, उन्होंने कहना चाहा, मगर उसने इनकी बात काट दी। बस बीबी जान, मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। सारा के बाद कोई भी इसकी जगह नहीं ले सकता। बेशक वो मुझे सच्चाई बताने का मौका दिए बगैर दिल में बेतबारी लिए इस दुनिया से चली गई, मगर हमारी मोहब्बत की निशानी मेरा बेटा, हमारा अनीक जिंदा है। मैंने कभी शादी करने का सोचा ही नहीं, मगर उसकी अम्मी जान को यही होता कि मैं अपने बेटे की शादी हर कीमत पर ज़रूर करूँगी, ताकि वो कुछ अपने पल गुजार सके और अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजार सके, और उसका बेटा भी अपनी माँ के पास रहे, और वो दोनों मियाँ बीवी आपस में खुश रहेंगे। पर तेरे बाबा तेरे चाचा से बिनिश के लिए बात कर चुके हैं। वो हैरियत से कंग देखता रह गया। बिनिश माई फुट, ऐसी लड़की पर मैं कभी निगाह डालना भी गवारा नहीं करता। आप जानती हैं कि मैंने पहले भी इससे शादी से क्यों इनकार किया था। वो एक ऐसी बदतमीज़ बिगड़ी हुई लड़की है जिसे अपनी तो क्या किसी की भी इज्जत बाइज्जती का कोई एहसास नहीं। बतौर कज़न मैं उसे बर्दाश्त तो कर सकता हूँ। आपने सोच भी कैसे लिया कि जैसे मैं पहले रिजेक्ट कर चुका था वो अब भी फिर मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए? इम्पॉसिबल। पर पुत्र, तेरे चाचा ने खुद तेरे बाबा से बात की थी, तेरे बाबा राजी हैं। वो थोड़ी सी आज़ाद ख्याल लड़की ज़रूर है, मगर अब इतनी भी बुरी नहीं, उन्होंने समझाना चाहा। बीबी जान, वो आज़ाद ख्याल ही नहीं बल्कि मॉडर्न अज़म के नाम पर एक धब्बा है। अगर मुझे उसे कबूल ही करना होता तो मैं बरसों से तय हुई अपनी और उसकी बात को ख़त्म करवा कर सारा से शादी ना करवाता। उसने ज़हर खुंद लहजे में कहते साफ इनकार कर दिया था। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया था, तेरे बाबा साहब बाज़द इस रिश्ते पर। बीबी जान, मुझे मजबूर मत करें, ये ना हो कि मैं अनीक को लेकर हमेशा के लिए आप लोगों की दुनिया से निकल जाऊं। हर रिश्ते से मेरा एतबार उठता जा रहा है बीबी जान। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि बिनिश नाम की तबाही के गड्ढे में आप भी मुझे धकेलने वालों में शामिल हो सकती हैं। बीबी जान खामोश हो गई। आप बाबा साहब को साफ कह दें, मैंने अब कभी शादी नहीं करनी, ना ही बिनिश से और ना ही किसी और XYZ से। सारा आप लोगों के लिए गैर है। बिनिश अगर चाचा की बेटी है तो वो फूफी जाद थी। बड़ी हैरियत हो रही है मुझे, इतनी जल्दी आप सारा को फरामोश किए बिनिश का नाम ले रहे हैं। आप मुझे वो तस्वीर और खतूत दे दें, मैं पहले इस किस्से को क्लियर करना चाहता हूँ। रह गई शादी की बात, तो बाबा साहब से साफ कह दें मुझे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी, अब ना कभी। वो 2 टके की इनकार कर दें। बेटे को बाजू में ठाए बेबी जान के कमरे से निकलता चला गया था। एक दर बंद हुआ था तो अल्लाह ने एक और दर खोल दिया था। शम्सा वाक़या इसके लिए एक हकीकी और गमसगार दोस्त साबित हुई थी। इसके एक जानने वाले की मिसेज गायना कॉलेजस थी। इनका शहर के पोश एरिया में अपना क्लिनिक था। उन्होंने एक फीमेल हेल्पर की ज़रूरत थी। शम्सा के दस्तवस्त से इसका मसला हल हो गया था। बहुत अच्छी थी, मगर कुछ ना होने से ये जॉब भी अच्छी थी। फिर पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिसेज अफरीदी दे रही थी। कम से कम घर के हांडी रोटी तो चल ही रही थी। वो इसके अलावा किसी अच्छी जॉब के लिए मुसलसल हाथ पर पैर मार रही थी। कई जगह